مسیح میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک مسیح چینل کا آغاز کر لیا ہے، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، سنیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کلام میں سے سیکھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھوایا گیا خدا کا کلام، جو میرے لیے اور آپ کے لیے آج تسلی اور میرے لیے اور آپ کے لیے روٹی ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے اس کے 10 باب میں سے، اور اس کی 38 آیت میں سے ہم سیکھنا شروع کریں گے۔ کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ لوکا 10 باب اس کی 38 آیت میں یوں لکھا ہے، پھر جب جا رہے تھے تو وہاں ایک گاؤں میں داخل ہوئے، اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک گاؤں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں۔ آمین۔ اور خداوند یسوع مسیح اکثر اس گاؤں کے اندر جایا کرتے تھے، اور اس گاؤں کا نام بیتھنیہ تھا، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا ایک دوست تھا جس کا نام لازر تھا۔ یہ لازر کی بہن مریم اور مارتھا تھی، اور جب خداوند یسوع مسیح اس گاؤں میں پہنچے تو مارتھا نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں کیا کیا؟ اتارا۔ آمین۔ اب یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھا، پھر جب وہ جا رہا تھا تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں کیا کیا جی؟ اتارا۔ آمین۔ مارتھا نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں کیا دی؟ دعوت دی، اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے گھر میں لے کر گئی۔ آمین۔ اب مارتھا نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے کیا کیا جی؟ گھر میں اتارا، اور آگے کتاب مقدس فرماتی ہے، لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ پریز ہاللویا۔ اب مارتھا اور مریم نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح جب اس کے گھر کے اندر موجود ہوئے، مریم خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ہمیشہ کی زندگی کی باتیں سنتی رہی۔ اور مارتھا نے کیا کیا؟ مارتھا گھر کی فکروں کے اندر رہی۔ جتنے بھی مہمان خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے، یسوع مسیح کے شاگرد، مارتھا ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی رہی، لیکن مریم خداوند یسوع مسیح کے پاس بیٹھ کر اس کے کلام کو سنتی رہی۔ اور یہاں پر جب وہ تھکی ہوئی یسوع مسیح کے پاس آ کر یسوع مسیح کے ساتھ وہ بات کرنا شروع کرتی ہے، تو سب سے پہلے کہتی کہ کیا خداوند تجھے بھی احساس نہیں کہ میں کام کر رہی ہوں اور مریم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ آگے پڑھے ذرا جلدی سی۔ لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ اب وہ فرماتی، کیا خداوند تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کے لیے، گھر کے خدمت کے لیے، سارے ارینجمنٹ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ خدمت کرنا بری بات نہیں ہے، گھر کے کام کاج کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن مارتھا نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں اتار کر جب وقت تھا کہ وہ یسوع مسیح سے کلام سنتی، زندگی کی باتیں سنتی، اس نے اس ٹائم کو ضائع کیا، اس ٹائم کو اس نے دنیا کی فکروں کے اندر کیا کر دیا؟ مصروف کر دیا۔
अब फिर वो जाकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब बात शुरू करती है तो कहती है कि खुदावंद तुझे भी ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेला काम करने के लिए क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब काम करना बुरी बात तो नहीं है, उसने कहा काम करो या कलाम करो, ये जानकर करो कि किसके लिए कर रहे हो। अब यहाँ पर मार्था खुदावंद यीशु मसीह के तमाम जो साथ लोग थे उनके काम की फिक्र थी, उसको उनके खाने की फिक्र थी, लेकिन उस वक्त ज्यादा जरूरी था कि वो खुदा के कलाम को सुनती। आमीन। उस वक्त ज्यादा जरूरी था कि वो क्या करती, खुदा के कलाम को सुनती, खुदावंद यीशु मसीह के पास बैठती और जिंदगी की बातें सुनती। लेकिन मार्था अपने घर की फिक्रों में है, अपने काम काज में। और यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, ऐ मार्था तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तलद्दुस में है। वो कहता है तू बहुत सी फिक्रों में पड़ी हुई है, बहुत सी फिक्रें तुझे घेरे हुए हैं, बहुत सी फिक्रों के अंदर तू पड़ी है। लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू बहुत सी फिक्रों के अंदर पड़ी हुई है, तुझे फिक्रों ने घेरा हुआ था। अच्छा ये था कि तू पहले खुदा का कलाम सुनती। यीशु मसीह ने भी एक जगह पर कहा कि मेरे भाई मेरे बहन वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर क्या करते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर मार्था खुदावंद यीशु मसीह के और तमाम लोगों के लिए क्या कर रही थी, खाना तैयार कर रही थी और घर के सारे काम काज के अंदर वो लगी हुई थी। जिस वक्त उसे दुआ करने की जरूरत थी, कलाम सुनने की जरूरत थी, उस वक्त उसे अपने घर के काम याद आ रहे थे। और आज भी बहुत सी कलीसिया के अंदर ऐसी मार्था हैं, बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं, जब खुदा के कलाम की बारी आती है सुनने की, हमें अपने सारे वो काम याद आना शुरू हो जाते हैं। काम करने के लिए हमें खुदा ने हुक्म दिया कि करो, लेकिन उस वक्त जो खुदा का टाइम है वो खुदा के हुजूर में हमें गुजारने की क्या है, जरूरत है। बहुत सी ऐसी आज भी मार्था कलीसिया के अंदर है, जब टाइम होता है कि हमने मसीह के हुजूर में खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उसके कलाम को सुनना है, जिंदगी की बातों को सुनना है। अब यहाँ पर मरियम ने क्या किया, मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह के पांवों के पास बैठकर क्या सुनती रही, कलाम सुनती रही। आमीन। उसे भी फिक्र होगी अपने घर की, उसे भी फिक्र होगी कि मेरा ये काम पड़ा हुआ है, लेकिन उसने उन कामों को अव्वल दर्जा नहीं दिया। उस वक्त उसने खुदावंद यीशु मसीह को अव्वल दर्जा दिया। आमीन। आमीन। आज भी बथेरी बहनें, बहुत से भाई हैं जो अपने कामों की फिक्रों में हैं। आमीन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वक्त हमने प्रेयर के लिए मुकर्रर किया है, जो टाइम हमने दुआ के लिए मुकर्रर किया है, जिस वक्त हमें जरूरत है कि यीशु मसीह के कदमों में बैठकर हम उसकी जिंदा आवाज को सुने, उसके कलाम को सुने, उस वक्त हम मार्था की तरह उस जगह से हटकर अपने काम में लग जाते हैं। और आज मेरे लिए और आपके लिए नसीहत है, तरबियत है कि हम जिस वक्त हमें जरूरत है यीशु के कदमों में आने की, उस वक्त हम यीशु के कदमों में हो। आमीन। आमीन। हमें मार्था की तरह अपनी जिंदगी को नहीं करना। आमीन। बहुत सी ऐसी मार्था हैं आज भी कलीसिया के अंदर। अब फैसला आपका है कि आप मरियम है या मार्था है। यीशु के कदमों में बैठकर कलाम सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी फिक्रों के अंदर पड़े हुए हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जब जरूरत है कि हम यीशु के कदमों में बैठकर उसकी बंदगी, उसकी इबादत करें, हम अपने काम काज के अंदर क्या होते हैं, मसरूफ रहते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा क्या किया है, चुन लिया है। आमीन। जो उससे आखिर तक छीना ना जाएगा। अब यीशु मसीह के मुंह से बात क्या निकली है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से क्या बात निकली है, एक चीज जरूर है
आमीन। एक अच्छी बात जरूर है, एक अच्छा काम जरूर है, और वो मरियम ने क्या किया है, वो हिस्सा चुन लिया है जो आखिर तक उससे छीना ना जाएगा। आमीन। हमेशा की जिंदगी जिसे यीशु दे दे उसे कोई भी छीन नहीं सकता। आमीन। और वो जिंदगी कहां से मिलेगी? खुदा के कलाम से मिलेगी। आमीन। अब यहां पर लिखा है कि मार्था ने उसे अपने घर में उतारा। आमीन। अब मिसाल के तौर पर इधर अच्छा हिस्सा तो मार्था को मिलना चाहिए था। सोचने वाली बात है कि नहीं? अच्छा हिस्सा किसे मिलना चाहिए था? क्यों? क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। आमीन। उसने अपने घर में किसे उतारा? यीशु को। अब हमारी सोच के मुताबिक जैसे हम सोचते हैं, उसने यीशु मसीह को कहा कि आ मेरे घर में। आमीन। लेकिन बरकत मरियम रिसीव कर रही है। आमीन। अक्सर औकात होता हम यीशु को कबूल करके दुनियादारी की फिक्रों में पड़े रहते हैं और हमारा कोई दूसरा साथ बैठा हुआ बरकत को हासिल कर जाता है। आमीन। आज भी गिरजाघरों के अंदर बहुत सी मरियम और बहुत सी मार्था मौजूद होती हैं। आमीन। बहुत से ऐसे भाई जो मरियम का किरदार अदा करते हैं, बरकत को हासिल कर लेते हैं, और बहुत से ऐसे भाई भी हैं जो मार्था का किरदार अदा करते अपने ज़हन को उसी जगह पर लगाए हुए हैं जहां जहां वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन मरियम ने क्या किया? कदमों में बैठी रही और तब तक नहीं उठी जब तक खुदावन ने उसे नहीं कहा कि मरियम ने वो अच्छा क्या हिस्सा चुन लिया जो आखिर तक उससे छीना ना जाएगा। हमारी सोच के मुताबिक उसने यीशु मसीह को घर में उतारा। जैसे आप किसी को घर के अंदर लेकर आए और बरकत दूसरा शख्स जिसको आप अपने घर के अंदर लेकर आ रहे हैं, वो जाते वक्त बरकत आपके छोटे भाई या छोटी बहन को दे जाए तो क्या बीतेगी आप पर? गुस्सा आएगा कि यार मैं नुकार बुलाया, मैं इसके लिए खाने बना रही हूँ, मैं इसके लिए कपड़े प्रेस कर रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, और जाते वक्त पैसे वो दूसरे को दे गया। बाद में वो लड़ना शुरू हो जाते घर में। यहाँ पर ऐसा ही हुआ। मार्था ने खुदावंद यीशु मसीह को घर में उतारा, लेकिन जब यीशु मसीह उस घर में आए, मरियम यीशु मसीह के कदमों में बैठकर क्या सुन रही है? कलाम सुन रही है। और मार्था दुनिया के फिक्रों में है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। आज भी बहुत सी ऐसी मार्था हैं जो इतवार वाले दिन भी उनको दुनिया की फिक्रों की पड़ी हुई है, दुनिया के कामों की पड़ी हुई है कि मैं भी मुकाला, ऐ भी मुकाला, ऐ भी मुकाला, काम कदी नहीं मुकने जिदे मुकना सही मुकना। बहुत से ऐसे लोग जो बड़े प्लान छोड़कर दुनिया जा चुके हैं, प्लान वही के वही पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मरियम ने यीशु मसीह के कदमों में बैठकर खुशखबरी सुनी, जिंदा आवाज को सुना, और उसने कहा, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो आखिर तक उससे छीना ना जाएगा। आमीन। फिर यहाँ पर वो गिला भी कर रही है कि तुझे भी ख्याल नहीं है। क्या कह रही है? क्या कह रही है वो? अक्सर औकात होता है ऐसे ही है, साथ वाले को बरकत मिल जाती है, वो रुल कुद्दस से ममूर हो जाता है, बरकत को हासिल कर लेता है, फिर वैसे ही हालात होते हैं जैसे यहाँ पर है। फिर हम दुआ के जरिया कहते हैं, खुदावंद मैनू क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं बरकत मिल रही? मैं भी चाहती हूँ मैं बेगाना ज़बानें बोलूं, लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, तू चाहता तो है, लेकिन जब कलाम सुनने की बारी थी तूने अपने ज़हन को किसी और जगह पर रखा हुआ था। जब यीशु मसीह के कदमों में बैठने की बारी थी, तुझे दुनिया की फिक्रों ने घेरा हुआ था। अब यहाँ पर मार्था के साथ ऐसा ही हुआ, और फिर वो भागी भागी आकर खुदावंद मसीह यीशु से गिले कर रही है, उससे शिकायत कर रही है कि तुझे भी ख्याल नहीं कि तू इसे इजाजत दे कि ये मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाए। वहां पर फिर मसीह ने कहा कि तू तो बहुत की चीजों की फिक्रों में पड़ी हुई है, तू बड़ियां चीज़ां दी फिक्र च है, लेकिन मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जरा कभी भी उसको खोया नहीं जाएगा। आज मुझे और आपको फैसला करना है कि हम कितनी कितनी फिक्रों के अंदर पड़े हुए हैं। जब बारी है यीशु के कदमों में झुकने की, उस वक्त हमें जरूरत है यीशु के कदमों में झुक जाने की। आमीन। अपना किरदार मरियम की तरह करें, मार्था की तरह दुनियादारी की फिक्रें छोड़ दें। जब हम उसने भी यीशु मसीह को घर में उतारा, लेकिन बरकत हासिल नहीं की।
मरियम ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जिंदा आवाज को सुनती रही बैठकर, और बरकत खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से उसके लिए निकली। आज बथेरे हैं जो यहाँ पर बरकत हासिल कर चुके हैं और बथेरे करने वाले हैं, लेकिन वही हासिल करेगा जो मरियम जैसा किरदार अदा करेगा। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत दे।